Hello kids, welcome back. As I said you in the last class, today we will learn about food we eat. Which kind of food we eat and what can we eat? What is eatable? Eatable यानी खाने खाने जैसी चीज़ें जिसको खा सकते हैं. Here you can see the group of people who are talking about what they had yesterday night or last night. Let's see what they had. Last night I ate a chapati made up of bajra and jaggery. Good. जिसको गुड़ कहते हैं. द चपाती वॉज मेड अप ऑफ अ ग्रेन कॉल्ड बाजरा. बाजरा भी वीट जैसा एक ग्रेन होता है. उस ग्रेन से बनी हुई रोटी के साथ ही हैड जागरी यानी गुड़ खाया उन्होंने. एंड आई कुक्ड दाल एंड राइस. शी कुक्ड दाल एंड राइस एंड शी एट दैट लास्ट नाइट. yesterday no food was cooked in my house. Oh, that means she slept with empty stomach. Do you know kids, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सफिशिएंट खाना नहीं मिल पाता है. दैट इज़ द रीज़न योर पेरेंट्स एंड योर एवरीबडी एल्डर ऑफ योर फैमिली टेल्स यू नॉट टू वेस्ट योर फूड. देर मेट बी उसके घर पे खाना नहीं होगा या चूल्हा के लिए लकड़ियाँ ख़त्म हो गई होगी. देर मेट बी सम रीज़न कि वो रात में खाना नहीं बना पाई या नहीं खा पाई. आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड फादर फॉर द लंगर. वी एट दाल एंड चपाती. यहाँ छोटे से दारजी जो आपको दिख रहे हैं वो बोलते हैं कि आई वेंट टू गुरुद्वारा. गुरुद्वारा में आपको पता है कि लंगर मिलता है. लंगर इज़ द फूड विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द गुरुद्वारा. आप कभी भी जाके खा सकते हो. वहाँ पर दाल और चपाती इन्होंने खा के आए अपने ग्रैंडफादर के साथ. एंड दिस गर्ल विल टेल दैट अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो शी एट ऑमलेट इंस्टेड ऑफ खीर एंड पूरी. Her mother prepared kheer and puri and she didn't like it. So she asked her mother to prepare omelette and she had the omelette instead of puri and kheer. My mother cooked fish. I ate lots of it. It was really tasty. She said her mother cooked fish and she liked it very much and she had it a lot. बहुत सारा खा लिया. My mother brought noodles for us from the house where she works. We enjoyed eating it. The place where his mother was working, she brought the noodles from that place and they enjoyed eating the noodles. Now, this is your work. You have to write in the textbook itself. What did you eat yesterday? Write in the plate. If I write roti, dal, Spanish, any palak. Spanish, and also I ate potato sabzi. So these are the things which I ate yesterday night. You have to write your own. What did you have yesterday night? Yesterday night यानी कल रात के लिए आपने क्या खाया था? You need to write in this plate. So let's see and talk about these kids now. Now the blackboard. They asked to write the names of the food item which you write in the note, which you write in your textbook. I have to write on the blackboard, but it is not possible right now. So you can. I will share in the next class if you send the homework to me. Did all the children in the class ate the same food items yesterday? No. Why? Because maybe our tradition of food items are different. If it is North Indian people, they may had that rajma chawal. अगर तमिलियन का बात करूँगी मैं तो they might have had अन्ना सांबर. कर्नाटका के पीपल की बात करूँगी where we are staying, they might have had that जवार की रोटी. सो हर लोगों का हर जगह से लोगों का खाना बदल जाता है. अगर पंजाबियों की बात करें तो उन्होंने शायद दाल मखनी खाई होगी या तो पनीर की सब्ज़ी खाई होगी, शाही पनीर, छोले, पूरी, ऐसा कुछ खाया होगा. तो हर लोगों का अपना ट्रेडिशन पे जाता है कि हमने क्यों
कैसे तरीके का फूड खाया है. डू करेक्शन दिस नंबर. दिट इज़ नॉट 36, इट इज़ 38. कैन यू सी? आई थिंक इट इज़ द ओल्ड प्रिंट. ये गलती से ओल्ड वाले बुक का प्रिंट हो गया है. 36 पेज नंबर. यू मस्ट हैव नोटिस दैट in the picture of page 38, this page, there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? Do you remember this child? She said yesterday no food was cooked in my house. Maybe उनके पास ग्रोसरी ख़त्म हो गई होगी, या तो उनके पास चूल्हा जलाने के लिए कुछ नहीं रहा होगा, या उनके घर में कोई. So that is the reason, children, be careful. Don't waste your food. There might be someone who really needs it. So you have to mention the reason. Has it ever happened to you that on same day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? It happened once in my life, only once. It was really, everybody was hungry, but unfortunately it was at 8 o'clock. Our cylinder, that LPG, got over. खत्म हो गया था गैस. And there was no alternate way to prepare the food at our home. आंगन में नहीं था जिसमें चूल्हा जला के खाना बना लेते. तो दैट वॉज द ओनली टाइम. एंड जब तक सिलेंडर नहीं आ गया तब तक हम लोग भूखे थे. दैट वॉज द ओनली टाइम. अगर आपका है तो येस लिखिए, नहीं है तो नो. एंड दूसरा सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपको भूखे रहने की नौबत आई, आपके लाइफ में कभी ऐसा टाइम आया हो जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी और आपको खाने के लिए कुछ ना मिला हो, अगर ऐसा है तो येस लिख के उसका आंसर लिखना है. दिस वन क्वेश्चन यू नीड टू राइट इन द नोटबुक. क्वेश्चन नंबर 4. डू वॉच द वीडियो केयरफुली, क्योंकि मैं होमवर्क इसी में मेंशन कर रही हूँ. हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है यू आर हंग्री? दैट आई फील समथिंग इन माई स्टमक, एम्प्टीनेस. आपको क्या लगता है कैसे? हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? आप जब भूखे होते हो आपको कैसे लगता है? 1, 2, 3 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क. दिस इज योर सेकेंड होमवर्क. यू नीड टू राइट इन नोट बुक. दिस इज टेक्स्ट बुक. इसी बुक में लिखना है. TB यानी टेक्स्ट बुक, NB यानी नोटबुक. रिमेंबर दिस 3 क्वेश्चन आंसर यू नीड टू राइट इन द नोटबुक. इसमें इतना कुछ नहीं है बच्चों. तो अभी यहाँ पे आपने देखा कुछ बच्चे वेजिटेरियन खा रहे हैं, मतलब पौधों का खाना खा रहे हैं. कुछ बच्चे फिश यानी फ्लश खा रहे हैं, एनिमल वाला फूड खा रहे हैं. लेट्स सी कौन कौन सा फूड हम खा सकते हैं. फूड वी ईट. फूड फ्रॉम प्लांट्स वी गेट फ्रॉम 2 सोर्सेस. 2 सोर्सेस से हमें फूड मिलता है, एक प्लांट से, दूसरा एनिमल से. सारा एनिमल वाला फूड नॉनवेज नहीं कहलाता है. जो प्लांट वाला फूड खाते हैं उनको वेजिटेरियन कहते हैं. जो प्लांट वाला फूड खाते हैं उनको वेजिटेरियन कहते हैं. जो एनिमल से आने वाला फूड खाते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं. लेकिन एनिमल से आने वाला सारा फूड नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है. उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी और अगले क्लास में क्या पढ़ाऊंगी वो भी आपको मैं बता दूंगी. देखिए, प्लांट में एक प्लांट होता है, उसमें बहुत सारे हिस्से होते हैं. जैसे कि रूट. अगर मैं एक प्लांट की बात करूं तो अंडर द ग्राउंड देयर में बी रूट. रूट में हम कुछ रूट्स खाते हैं जैसे कि रेडिश, कैरेट. ये रूट खाते हैं हम, यानी उसकी जड़ें खाते हैं. ये जड़ होता है, ज़मीन के अंदर होता है. कैन यू सी दिस पार्ट विल बी द अंडर द ग्राउंड. स्पेनिश यानी लीव्स, पत्ते खाते हैं. पालक, मेथी जैसे सब्जियां के पत्ते खाते हैं हम लोग. कुछ पौधों के हम बीज खाते हैं, जैसे कि सारे फूड ग्रेन्स इसके बीजों में आता है बच्चों. जैसे कि वीट, मेज, जवार, मैनी मोर थिंग्स. तो ये हम सीड्स खाते हैं. उसके बाद स्टेम भी खाते हैं, जैसे कि शुगर केन, गन्ना पेड़ का स्टेम है. और पोटैटो भी स्टेम में आता है. हम लोग सोचते हैं यूजुअली कि पोटैटो शायद स्टेम नहीं, रूट है. नहीं, ये स्टेम में आता है बच्चों. फ्रूट्स
मैंगो, ऑरेंज, मैनी मोर फ्रूट जो भी फल की तरह आ जाता है, स्ट्रॉबेरीज एंड ऑल. फ्लावर लाइक कॉलीफ्लावर भी, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, ये हम लोग फ्लावर्स एक पौधे के खाते हैं. पौधे का हर हिस्सा, हम हर पौधे का हर हिस्सा नहीं खाते, कुछ पौधे के कुछ कुछ हिस्से खाते हैं. जैसे कि रूट्स की बात करें तो कैरेट और रेडिश आ जाएंगे. लीव्स की बात करें तो स्पेनिश आ जाएगा. सीड्स की बात करेंगे तो वीट, मेज, बाजरा, जवार सब आ जाएंगे. और स्टेम की बात करेंगे तो शुगर केन, पोटैटो जैसे स्टेम खाते हैं हम लोग. फ्रूट्स की बात करेंगे तो मैंगो, ऑरेंज, मैनी मोर फ्रूट्स फ्लावर की बात करेंगे तो कॉलीफ्लावर, ब्रोकली जैसे फ्लावर्स हम लोग खाते हैं. हर पौधे का हर हिस्सा हम नहीं खाते हैं, कुछ पौधे के कुछ कुछ हिस्से खाते हैं. कुछ पौधे के रूट होते हैं तो कुछ पौधे के स्टेम होते हैं, कुछ के लीव्स होते हैं, कुछ के सीड्स होते हैं, और कुछ के फ्लावर्स खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं. सारे पौधों के फ्रूट्स भी नहीं खा सकते हम, तो गिने चुने चीज़ें हम लोग खाते हैं. अभी आइए, हम एनिमल से क्या क्या फूड लेते हैं. इसमें सिर्फ यही चीज़ें खाने वालों को हम लोग प्योर वेजिटेरियंस कहते हैं. वेजिटेरियंस प्योर यानी वो लोग कुछ भी मांस, मतलब आपको एक और टॉपिक समझाने के बाद मैं ये क्लियर करूँगी. जैसे कि काउ, गोट, बफेलो से हमें मिल्क मिलता है. मिल्क इज़ द बेसिक प्रोडक्ट एंड इट इज़ वेजिटेरियन. किसी जानवर को मार के नहीं लेते हैं हम, ये जानवर का साइड प्रोडक्ट होता है. तो काउ, गोट एंड बफेलोज गिव्स अस मिल्क. मिल्क से हम साइड प्रोडक्ट भी बना सकते हैं. मिल्क से और ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं. मिल्क हमें बेसिकली एनिमल से मिलता है. ये वेजिटेरियन फूड में आता है. बटर, घी, चीज़, पनीर, कर्ड, ये सारा हमें दूध से ही मिलता है. तो दूध वेजिटेरियन में आता है क्योंकि दूध से हम जानवर को मार के नहीं लेते हैं दूध. ओके. hen एंड डक गिव्स अस एग एंड मीट. ये एनिमल से मिलता है हमें. हनी बी गिव्स अस हनी. हनी इज़ ऑल्सो वेजिटेरियन. ये भी वेजिटेरियन है, याद रखिए बच्चों, ठीक है. बट एग को कुछ लोग वेजिटेरियन बोलते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं. मीट नॉन वेज में आता है, यानी हमें इनको मारने के बाद ही हमें उनका फ्लैश खाने मिलेगा. दैट इज़ नॉन वेजिटेरियन. hen, goat, fish, prawns and cows is eaten as meat. उनके फ्लैश को निकाल के खाया जाता है. मछली हो, प्रॉन्स हो, मुर्गी, डक को भी खाया जाता है कई कई जगहों पे. आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे पहाड़ी ज़मीन है, काउ एंड बफेलो वहाँ पे इजीली नहीं मिलते हैं. पहाड़ी ज़मीनों की बात करूँगी तो वहाँ पे याक होता है. याक का मिल्क पहाड़ी, ठंडी और पहाड़ी ज़मीनों में वहाँ पर याक का मिल्क पिया जाता है. जैसे कि हम लोग काऊ और बफेलो का मिल्क यहाँ पर पीते हैं. और दूसरी बात, डेजर्ट एरिया में कैमल का मिल्क पिया जाता है. डेजर्ट एरिया में कैमल का मिल्क पिया जाता है. आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है. हमें खाना कहाँ कहाँ से मिलता है, हमें खाने को कैसे खाना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही प्लेट में डालिए और वेस्ट मत कीजिए. एंड याद रखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जिनको बिल्कुल खाना नहीं मिलता है. सो ईट every bite, every single drop of every single particle of food very carefully. Don't waste anything. 2 टाइप के फूड देख लिए. प्लांट्स विच वी गेट फ्रॉम फूड विच वी गेट फ्रॉम प्लांट, फ्रॉम विच वी गेट फूड फ्रॉम विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. फूड विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. 2 टाइप का फूड हमने देख लिया है. एनिमल से मिलने वाला सारा फूड नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है. कुछ फूड होता है जो वेजिटेरियन में आता है, जैसे कि हमने देखा मिल्क प्रोडक्ट जो भी है वेजिटेरियन में आते हैं. और हनी भी वेजिटेरियन में आता है. हनी हमें हनी बी से मिलता है. तो इवन इंसेक्ट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस. हनी बहुत स्वीट होता है, नेचुरल स्वीटनेस होती है एंड इट इज़ नोन एज एंटीसेप्टिक. हनी को हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं. एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं हनी को. चलिए बच्चों, अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखेंगे कि किस तरह से हमें न्यूट्रिशंस मिल सकते हैं. एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से होते हैं. आई होप कि आपको लेसन समझ में आया है.
अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों को इतना ही मैं डाल के देती हूँ, दिस वुड बी गिवन एज मैच द फॉलोइंग फॉर यू। अगले क्लास में आपको ये मिलेगा, इसके बाद जो भी लेसन्स का कंटेंट है उसी को हम ख़त्म कर देंगे। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।